Maths Cafe. Students, in our last video we discussed the first 5 questions of exercise 13.7 and now we will discuss the remaining 4 questions of this exercise. So let us start with question number 6. Sixth question is the volume of right circular cone is 9856 centimeter cube. Volume हमें given है. If the diameter of the base is 28 centimeter, find first part height of the cone, second part slant height of the cone, and third part curved surface area of the cone. So let us start. First write the given things. हमें given है यहाँ पे कि volume of cone is 9856 centimeter cube. Its diameter is given 28 centimeter. So therefore radius is half of the diameter. So this is 14 centimeter. Now first part is find the height. अब height के लिए हम volume से ही शुरू करते हैं. According to question, वॉल्यूम ऑफ कोन हमें गिवन है 9856 सेंटीमीटर क्यूब एंड फॉर्मूला ऑफ द कोन वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. पाई इज 22/7, रेडियस इज 14 square, so 14 into 14. Height we have to calculate. Now simplify this. 7 2s 14. So h is 9856 into 3 divided by 22 into 14 into 2. Now simplify this and after simplification, ये मैं आपको यहाँ पे इसको सॉल्व करके भी दिखा सकती हूँ. This is 2 4s 8, 1 is left 18, so this is 9 and this is 28. Okay. Now 7 2s 14. This is 7 7s 49, then 0 and 7 4s 28. Now this is 3 5 2. Now with 11, 11 2s 22, 11 3s 33, 3 left, 2 left, 22, so 11 2s 22. Now this is 2 16s. So height is 16 into 3, 48 centimeter. Height of the cone is 48 centimeter. Now second part is we have to find slant height, and slant height का फॉर्मूला हमारे पास होता है अंडर द रूट आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर. अब हमारे पास रेडियस और हाइट दोनों है. रेडियस इज 14 स्क्वेयर एंड हाइट इज 48 स्क्वेयर. 14 square is 196, 48 square is 2304, and this is 2500, and the square root of this is, you can also write this as 25 into 100 ताकि आप इसको easily simplify कर सकते हैं. Square root of 25 is 5 and square root of 100 is 10. So after multiplication this is 50. So slant height is 50 centimeter. Now the third part is we have to find its curved surface area of cone, and the formula for the curved surface area is pi RL. Now again substitute all the values. 22/7, radius is 14 and slant height is 50. So 7 2s 14. Now multiply 22 with 2 and 50. So this is 2200 centimeter square. So this is question number 6. Now come to question number
7. Question number 7 is a right triangle ABC with sides 5 centimeter, 12 centimeter, 13 centimeter is revolved about the side 12 centimeter. उसको हम 12 centimeter side के along उसको revolve कर रहे हैं. Find the volume of the solid so obtained. जब हम एक ट्राइंगल को उसकी किसी भी साइड के along जब उसको रिवॉल्व कराएंगे देन हमारे पास जो उसकी शेप मिलेगी दैट इज़ कॉनिकल शेप. ओके, सो फर्स्ट आई एम ड्राइंग द ट्राइंगल. यहाँ पे मैं एक ड्रॉ कर रही हूँ जो गिवन है हमारे पास. दिस इज अ ट्राइंगल ए बी सी. ए बी सी, देखिए ट्राइंगल का नेम हमें ए बी सी दिया हुआ है. फिर उसने हमें साइड्स जो दी हैं दैट इज़ 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर. ओके, जो राइट ट्राइंगल हमें गिवन है. अब सबसे पहले ए बी सी है तो ए बी हमारे पास साइड आई है. दिस ए बी इज़ 5 सेंटीमीटर. आफ्टर दिस बी सी इज़ 12 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है. दिस इज़ योर 13 सेंटीमीटर. अब उसने क्वेश्चन में हमें क्या कहा है कि हम इसको इस 12 सेंटीमीटर साइड के अलॉन्ग रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं. इसको हमने फिक्स कर दिया और इसके अलॉन्ग इस ट्राइंगल को रिवॉल्व किया. तो अब हमारे पास जो शेप हमारे पास आएगी दैट इज़ ऑफ कॉनिकल. जब ये रिवॉल्व होकर इधर आएगा तो यहाँ पर हमारे पास ये ए डैश में इसको डिनोट कर रही हूँ और इस तरह से मैंने इसको डॉटेड में डिनोट कर दिया कि इस तरह से आपका एक कोन मिलेगा और इस कोन में हमारी जो हाइट होगी दैट इज़ 12 सेंटीमीटर. इट्स रेडियस इज़ 5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लांट हाइट इज़ 13 सेंटीमीटर. तो हमें इस फिगर को ध्यान से देखना है और अब जो चीज़ें हमारे पास हैं उन्हें हम लिख लें. यहाँ पे रेडियस इज़ 5 सेंटीमीटर, इट्स हाइट इज़ 12 सेंटीमीटर and its slant height is 13 centimeter. Now we have to find its volume. अब वॉल्यूम ऑफ कोन का हमारे पास फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच. सो 1/3 पाई इज 22/7, रेडियस इज 5 into 5 and height is 12. So 3/4 12. Now after simplification this is 2200 divided by 7 or 314.28 centimeter cube. This is the answer of question number 7. Now come to question number 8. Question number 8 is if the triangle ABC in question number 7, same वही triangle हम consider कर रहे हैं जो हमने 7th question में लिया, इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर. अब हम उसको 5 सेंटीमीटर वाली साइड के अलॉन्ग रिवॉल्व कर रहे हैं. देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन. अब जो हमारे पास हमें पता है सॉलिड क्या मिलेगा दैट इज़ ऑफ कॉनिकल शेप, तो अब उसका हमें वॉल्यूम निकालना है. फाइंड ऑल्सो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द टू सॉलिड्स ऑब्टेन्ड. अब ये जो दो 7th क्वेश्चन में जो हमारे पास कौन था और जो 8th क्वेश्चन में जो कौन है, दोनों के वॉल्यूम की रेशियोज अब हमें निकालनी है. सो फर्स्ट फाइंड द वॉल्यूम. अब हमारे पास फिर से मैंने उसी फिगर को यहाँ पर ड्रॉ किया. दिस इज़ द राइट ट्राइंगल जो गिवन है हमारे पास ए बी सी. दिस इज़ 12 सेंटीमीटर, दिस इज़ 5 सेंटीमीटर, दिस इज़ 13 सेंटीमीटर. अब हम उसे इस ए बी को हमने फिक्स कर दिया, इस साइड के अलॉन्ग हम उसका रिवॉल्व कर रहे हैं. इट मीन्स कि जब रिवॉल्व करेंगे तो सी यहाँ पर शिफ्ट होगा. तो अब कुछ शेप जो हमारी है वो सी डैश, और ये जब रोटेट होगा तो दिस कम्स इन सर्कुलर फॉर्म. इस तरह से हमारा कोन बन जाएगा. अब इस कोन के अंदर हमारी जो हाइट है इस कोन की दैट इज़ 5 सेंटीमीटर, रेडियस इज़ 12 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट इज़ 13 सेंटीमीटर. एंड वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस कोन. दिस इज़ 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच. वॉल्यूम ऑफ कोन सो ऑब्टेन्ड. हम इस तरह से भी इसको यहाँ पे लिख सकते हैं
Now substitute the values 1 by 3, 22 by 7, radius is 12 into 12 and height is 5. 3 fours 12. So this is 5280 by 7 centimeter cube, or we can write 754.2857 centimeter cube. This is the volume. अब सेकेंड पार्ट वो इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि जो कौन हमारे पास 7th क्वेश्चन में मिला है और 8th क्वेश्चन में, हमें इन दोनों की वॉल्यूम की रेशियो निकालनी है. सो इसको हमने फर्स्ट कोन मान लिया. सो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सेकेंड कोन. अब देखिए, आप जब हम यहाँ पे वॉल्यूम इसका निकाल रहे हैं, नाउ दिस इज इंस्टेड कि हम डेसिमल फॉर्म में लें, डेसिमल में लेंगे तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा दोबारा से, एक लंबा प्रोसेस होगा. तो ये जो हमारी रेशियो वाली फ्रैक्शन वाली फॉर्म है 2200/7, ये भी हमारा वॉल्यूम था. तो हम इस फॉर्म में ले लेते हैं क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में 7 है, जो कि हमें कंपैरेटिवली सॉल्व करना इजी रहेगा. सो फर्स्ट वाले को मैं 2200/7 और सेकेंड इज 5280/7. नाउ दिस 7 इज कैंसिल और आप इसको पूरा इस तरह से लिख सकते हैं 2200/7 मल्टीप्लाई. जब मल्टीप्लाई साइन लगाएंगे तो जो डिनोमिनेटर है उसका हम रेसिप्रोकल यहाँ पर लेंगे 5280. दिस 7 इज कैंसल्ड, दिस 0 इज ऑल्सो कैंसल्ड. नाउ सिंप्लीफाई दिस. दिस इज विद 2 से पहले हम इसको कर देते हैं. सो दिस इज 110 and this is 264. इसको हमने 2 से किया, फिर से ये हमारा 2 से कैंसिल हो रहा है. दिस इज 55 and this is 13 and 2 132. Now this is divisible both by 11. दोनों के दोनों 11 से both will be divisible by 11. So 11 5s 55, 11 1s और फिर 2 हमारे पास रह गया 22, 11 2s 22. अब हमारा और नहीं होगा. सो द रेशो जो हमारे पास आई है यहाँ से, अब ये 5/12 आ गया. तो रेशो जब हम लिखेंगे तो हम उसको कैसे लिखेंगे? रेशो इज़ 5:12. This is the answer of question number 8. Now come to the last question of this exercise. Question number 9. Last question is a heap of wheat. Heap of wheat means एक गेहूं का ढेर है. जब भी आप सैंड को या गेहूं को आप डालते हैं तो हमारे पास एक कॉनिकल शेप में ही बनता है. A heap of wheat is in the form of cone whose diameter is 10.5 meter and height is 3 meter. Find its volume. हमें उसका वॉल्यूम निकालना है. The heap is to be covered by canvas to protect it from rain. अब हम उस heap को कैनवस से कवर कर रहे हैं ताकि वो बारिश से बच सके. Find the area of the canvas required. अब वो सिर्फ ऊपर से कवर हो रहा है, बेस तो उसका नहीं होगा. दैट मीन्स कि हमारा जो कैनवस रिक्वायर्ड होगा दैट इज इक्वल टू द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन. सो फर्स्ट राइट द गिवन थिंग्स जो हमें गिवन है. यहाँ पे डायमीटर हमें गिवन है कॉनिकल हीप का. डायमीटर ऑफ कॉनिकल हीप इज 10.5 meter. So therefore radius is half of the diameter 10.5 by 2. Height हमें given है यहाँ पर. Height is 3 meter. First बात है हमारे पास volume निकालना. So volume of conical heap is 1/3 pi r square h.
Now substitute the values. 1 by 3, pi is 22 by 7, and radius is 10.5 by 2, 10.5 by 2, and height is 3. Okay, so this 3 is cancelled. 2 11s is 22. Now we can remove the decimal. हम यहाँ पे डेसिमल रिमूव कर सकते हैं. सो या फिर एक बार हम उसको पहले भी इसको कर सकते हैं. दिस इज़ 1.5. सो द लिफ्ट जो हमारे पास है दैट इज़ 11 इंटू, इसको 15 by 10 we can write, and 105 by 2 into 10. अब मैंने इनका डेसिमल जो है वो यहाँ पर रिमूव कर दिया है. अब ये फिर से हमारे पास थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है. 5 3s 15, 5 2s 10, and again with 5 21s 105, 5 2s 10. Now after multiplication, डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 2 4 इंटू 2 8 है, और न्यूमिनेटर में 11 इंटू 3 33 इंटू 21, and this comes out to be 693. Now after divide, this is 86.625 सेंटीमीटर क्यूब. ये हमारा आ गया वॉल्यूम. सेकेंड पार्ट हमें निकालना है कि कितने कैनवस की रिक्वायरमेंट है, और कितनी कैनवस की रिक्वायरमेंट होगी वो अभी हमने डिस्कस किया था कि दैट इज इक्वल टू द कर्व्ड सरफेस एरिया. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन के लिए जो फॉर्मूला है वो उसमें हमारे पास क्या होता है, पाई आर एल. रेडियस हमारे पास है बट एल नहीं है. सो फर्स्ट फाइंड स्लांट हाइट, हम यहाँ पे उसकी निकाल लेते हैं. एल इज अंडर द रूट आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर. सो रेडियस इज 10.5 by 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5.25, and height is 3 square. Now after simplification, this is 5.25 is 27.5625, and 3 square is 9. So this comes out to be 36.5625. and now find the square root. Square root हम 8th में already discuss कर चुके हैं. This comes out to be 6.04 centimeter. So this is the slant height. अब slant height निकालने के बाद हम उसका curved surface area निकालेंगे. So area of canvas required is equal to curved surface area of cone. अब curved surface area हमारे पास क्या है, IRL. Now substitute the values. 22 by 7, radius is 10.5 by 2, and slant height is 6.04. and after simplification this result, इसको आप थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको कैंसिल आउट भी कर देती हूँ. 2 11s and 7 into 1.5. Now this is 11 into 1.5 into 6.04, and after multiplication this is 99.825 centimeter square. So this is the area of the canvas which is required to cover the heap. And with this question, this exercise is complete. And in next video we will discuss its last exercise, that is the volume of sphere. Thank you and have a nice day.